Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। I want to greet you in the name of Jesus. मैं आपको यीशु मसीह के नाम से अभिवादन करता हूँ। I'm so glad that we could study the Word together. मैं बहुत ही आनंदित हूँ कि हम सब एक साथ मिलकर परमेश्वर का वचन का अध्ययन कर रहे हैं। The Bible is precious. और बाइबल बहुत ही मूल्यवान है। It is a treasure that can change our life. एक ऐसा खजाना है जो हमारे जीवन को बदल सकता है। Wherever you come from, आप जहाँ से भी आए हो, whatever may be your story, चाहे आपकी जो भी कहानी हो, but once you come in contact with the Word of God, लेकिन जैसे ही आप परमेश्वर के वचन से मिलते हो, your life will change. आपका जीवन बदल जाएगा। You will never be the same again. आप जैसे पहले थे वैसे नहीं रहेंगे। If you let the Word of God take control over your life, अगर आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन के ऊपर नियंत्रण करते हो, then your life will be transformed. तो आपका जीवन ज़रूर बदलेगा। I believe the Bible is not just a book for information. मैं ये विश्वास करता हूँ कि बाइबल सिर्फ एक इंफॉर्मेशन के लिए नहीं है, It is for transformation. वो बदलाव के लिए है। So that being said, ये बोलने के बाद we are studying through the Gospel according to Mark. हम मरकुस का पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं We are in chapter 14 right now. और हम मरकुस का 14वां अध्याय में हैं। And we're going to study from verses 53 to 66 today. और आज हम 53 से लेके 66 तक पढ़ेंगे। So let's start. तो अभी हम शुरू करेंगे। फिर वे यीशु को महायाजक के पास ले गए और सब महायाजक और पुरीनिये और शास्त्री उसके यहाँ इकट्ठे हो गए। So you see now, Jesus is being betrayed by Judas. अभी आप देख सकते हैं कि यहूदा ने यीशु को धोखा दिया And then Jesus is caught by these soldiers and he's arrested and taken into custody. और अभी यीशु मसीह को गिरफ्तार कर दिया गया है और ये सारे पहरेदार आकर यीशु को ले जाते हैं। And now he's standing before the Sanhedrin. और अभी वह महासभा के सामने खड़े हैं And they are investigating Jesus. और अभी वो जांच पड़ताल कर रहे हैं। But if you read verse 50, all his disciples ran away and deserted him. अगर आप वचन 50 में देखेंगे तो वहाँ लिखा है कि सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। So Jesus was all alone in the midst of his enemies. तो यीशु अकेले थे अपने दुश्मनों के सामने। When I say enemies, it breaks my heart. जब मैं दुश्मन बोलता हूँ तो मेरा दिल टूट जाता है, Because these people are the people who are looking for Jesus to come. क्योंकि ये लोग वैसे लोग हैं जो यीशु के पास आना चाहते थे। They were looking for Jesus to come to them as a Messiah. वो चाहते थे कि यीशु मसीहा की तरह आएंगे। They were expecting that Jesus, being, if he is the Messiah, would come and lead them. उन्हें ऐसा लगा कि यीशु आएंगे मसीहा की तरह और उन्हें आगे बढ़ाएंगे। He is the Messiah, वो मसीहा है, but they didn't accept it. लेकिन उन्होंने उन्हें ग्रहण नहीं किया। So these are the people actually Jesus came for. तो ऐसे लोगों के लिए यीशु आए। And we see a man here called Caiaphas, who is the high priest. और हम यहाँ पे एक व्यक्ति को देखते हैं जिसका नाम है कैफा, जो महायाजक है। He is the leader of every religious system that is of the Jews. और यहूदियों का वो महायाजक था और उसका अगुवाई था, Supposedly to be the holy man of all the people. और माना जाता था कि वो बहुत ही पवित्र था। Probably this was the only man who could enter the holy of the holies in the temple. हो सकता है कि उसी को सिर्फ मंदिर में जाने के लिए हो सकता है कि सिर्फ वही मंदिर में जा सकता था। That high priest is now gathering every religious leader just to make sure that Jesus is captured and killed. अभी यह महायाजक सारे धर्मों के लोगों को, यहूदियों को बुलाता है ताकि वो यीशु को पकड़ सके। And the Sanhedrin, is basically a group of people who are the ruling authorities of the Jews. और ये जो महासभा है ये है कि यहूदी का अधिकारियां यहाँ पे बैठते हैं। It's like a panchayat in India, but it's a bigger one. ये पंचायत की तरह है लेकिन बहुत ही बड़ा है। But if you know, they met in a particular place. They actually had an official location to question somebody like a court of law. और वो ऐसी जगह पे बैठते थे जहाँ पे वो सवाल पूछ सकते थे जैसे कि एक कोर्ट में हो। But right now, that's not where they are. लेकिन अभी वो वहाँ पर नहीं थे। So this was conducted
this particular questioning and trial of Jesus is conducted at the house of Caiaphas, the high priest. और हम देखते हैं कि ये जो पेशकश थी जहाँ पे यीशु मसीह को पेश किया गया था वो महायाजक के घर पर था. And this was a trial, if you remember, they caught Jesus, arrested Jesus in the night, so it was immediately happening. So this was a trial happening in the night, and probably this was the first time a trial is happening in the night. और यीशु को रात को गिरफ्तार कर दिया था, उन्हें बंदी बनाया गया था रात को, तो उनकी पेशकशी जो है वो रात को की गई थी. That is illegal. और ये गैर कानूनी है. So verse 54, if you read, अगर हम वचन 54 पढ़ेंगे, पतरस दूर ही दूर से उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन के भीतर तक गया और प्यादों के साथ बैठकर आग तापने लगा. so we can see from Mark that Peter followed Jesus but from a distance. हम देख सकते हैं कि मरकुस के पुस्तक के अनुसार पतरस यीशु मसीह के पीछे गया लेकिन उसने दूरी बनाए रखी थी. I could think of two reasons. मैं इसका दो कारण सोच सकता हूँ. One is that Peter wanted to maintain a safe distance so he is safe. मैं ये मानता हूँ कि उसे दूर रहना था ताकि वो सुरक्षित रहे. And another reason is he probably was so curious to know what is happening to Jesus because he cared. और दूसरी चीज़ ये है कि वो जानना चाहता था कि यीशु के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि वो सच में बहुत यीशु के बारे में सोच रहा था. If you remember, this was the Peter moments ago said, I will follow you to death. और यही वो पतरस है जिसने बहुत पहले कहा था यीशु को कि मैं मरने तक तेरे साथ दूँ. But now he is just acting like an observer who wants to just be far away, you know. लेकिन अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो सिर्फ दूर है, खड़ा है और देख रहा है कि वहाँ क्या हो रहा है. He's sitting with his servants of the high priest. और वो वहाँ पर जो सेवक लोग हैं, महायाजक के सेवक के साथ बैठा है. See, many people, or believers I would say, many believers want the safe distance while they follow Jesus. बहुत से विश्वासी भी ऐसे हैं कि जब वो यीशु के पीछे चलते हैं तो वो एक दूरियां बना के रखते हैं. They don't want the trouble when they follow Jesus. वो नहीं चाहते कि उन्हें कोई परेशानी हो जब वो यीशु के पीछे चल रहे हो. They don't want to be put to shame or challenged because they're following Jesus. वो नहीं चाहते कि उनका अपमान हो या उन्हें चुनौती मिले जब वो यीशु के पीछे चल रहे हो. How are you following Jesus? आप कैसे चल रहे हो? Closely or with a safe distance? क्या आप यीशु के करीब चल रहे हो या दूरियां बनाकर रखे हो? One way to know is if you are closely following Jesus, एक तरीका है जानने का कि अगर आप सच में यीशु के करीब हैं, people will know that you are a Christian. तो लोगों को समझ आएगा कि आप एक क्रिस्ती हो. Because you will never be able to stop witnessing, sharing the goodness and the mercy of Jesus Christ. क्योंकि आप जब यीशु को के करीब होंगे तो आप और ज़्यादा सुख समाचार बांटेंगे, आप उनके दया के बारे में लोगों को बताएंगे. You will never be able to stop sharing the sacrifice of Jesus. और आप कभी भी यीशु के बलिदान के बारे में बांटेंगे. People will know you're a Christian. और लोगों को ये पता चलेगा. So does your neighbors know that you're a believer? तो क्या आपका पड़ोसी जानता है कि आप एक विश्वासी हो? Does your friends and colleagues know that you follow Jesus? क्या आपका दोस्त जानता है कि आप एक विश्वासी हो, आप यीशु के पीछे चल रहे हो? If not, then you are maintaining a social distance or maybe a safe distance from Jesus. अगर नहीं तो इसका मतलब ये है कि आप सच में यीशु के करीब नहीं हो, आपने दूरियां बनाए रखी है. So coming back to this event, we can see Caiaphas' house had 2 floors and there was a courtyard in the ground floor. अगर आप घटना में आए तो काइफा के घर में दो फ्लोर था. And probably people were gathered and his servants were gathered in the night in the courtyard, you know, having a fire and chit-chatting about who is this new guy, what's going to happen tonight, huh? हो सकता है कि वहाँ पे आंगन में बहुत से जो सेवक है वो लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, आग लगाए और बातें कर रहे थे कि अभी क्या होने वाला है, ये जो नया व्यक्ति आया है उसके साथ क्या होने वाला है. Let's find out what they do to him. अभी हम देखेंगे कि उन्होंने क्या किया. Or who is this guy who is going against our master, the holy man? ये कौन है ये व्यक्ति जो हमारे मालिक के पवित्र आदमी के पीछे है? And Peter found a place among those servants of the high priest. और पतरस ने उसे जगह मिला कि
महायाजक के दास के पास वो बैठा हुआ था। He made himself very comfortable and warming himself in the fire, you know. और वो बहुत ही आरामदायक जगह पे था और वो अपने आप को वहाँ पर गर्मी दे रहा था। Verses 55 to 57. और अभी हम 55 से लेके 57 तक पढ़ेंगे। महायाजक और सारी महासभा यीशु के मार डालने के लिए उसके विरोध में गवाही की खोज में थे, पर न मिली, क्योंकि बहुतरे उसके विरोध में झूठी गवाही दे रहे थे, पर उन्हीं की गवाही एक सी न थी। तब कितनों ने उठकर उस पर यह झूठी गवाही दी। So we can see that it was not a truth-seeking investigation or a mission. तो हम देख सकते हैं कि ये एक सच्चाई यहाँ पे नहीं थी। They were intentionally wanting to find something against Jesus so they could put him to death. वो जानबूझकर यीशु को मृत्यु दंड देना चाहते थे, That's the only thing they were interested. क्योंकि उसी में उनको दिलचस्पी थी, They want to give him the capital punishment. क्योंकि वो उन्हें मृत्यु दंड देना चाहते थे। And if you see, they are meeting in the high priest house, because if this happens in the official Sanhedrin office, I'm saying, people would be gathered and anybody and everybody from the public can come and witness, and there could be a riot. इसलिए यहाँ पर काइफा के घर पर यीशु की पेशकश की गई थी, ना कि कोई आधिकारिक कार्यालय में की गई थी, क्योंकि अगर ये आधिकारिक कार्यालय में किया जाता तो शायद वहाँ पे बहुत सारी जनताएं मौजूद होती और वहाँ पे शायद भीड़ इकट्ठा होती या झगड़ा होता। So it is also a rule that when there is a feast that is happening or a festival that is happening or when it is a Sabbath, you're not supposed to have a trial. और एक ऐसा भी रूल है कि अगर कोई पर्व है या तो फिर सप्त का दिन है तो वहाँ पे आपको पेशकश नहीं करनी चाहिए। And in any capital punishment, there should be at least 2 eyewitnesses. और कोई भी मृत्यु दंड अगर देना है तो 2 गवाही होना बहुत ज़रूरी है। But here we see many arose to just testify falsely. लेकिन अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए क्योंकि वो एक गलत गवाही दे रहे थे। So the general public couldn't come because it was happening in Caiaphas' house and it's a closed group. और इसलिए बहुत से सामान्य जो जनता है वो आ नहीं पाए क्योंकि ये काइफा के घर में हो रहा था। This is illegal. और ये गैर कानूनी है। The high priest is doing this. This is illegal. और ये महायाजक कर रहा है जो कि गैर कानूनी है। Corrupt leaders in a court justifying Jesus. और भ्रष्टाचार अगुवाई जो कोर्ट में है वो लोग यीशु को नीचे डाल रहे थे। Justice was denied. और यहाँ पे कोई न्याय नहीं हो रहा था। So there are 2 things we can understand here. यहाँ पे 2 चीजें हमें समझ आता है। One is this is not a real trial, it's a false trial. सबसे पहला ये है कि ये जो पेशकश थी ये एक झूठा पेशकश था। The second is none of the witnesses were true. They're all false witnesses, false testimony. और जो भी गवाही था वो भी झूठा गवाही था। Verses 58 and 59. वचन 58 और 59 कि हमने इसे यह कहते सुना है कि मैं इस हाथ के बनाए हुए मंदिर को ढा दूंगा और 3 दिन में दूसरा बनाऊंगा जो हाथ से न बना हो। So now you see they are accusing Jesus falsely and they're just their testimonies don't match. अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वो यहाँ पे यीशु का गलत झूठा गवाही दे रहे हैं और उन्होंने जो भी गवाही दिया है वो एक जैसा नहीं था। Jesus did say, I will destroy this temple and in 3 days I will build it again. And he was talking about his own body. He was not talking about the physical temple. और यीशु ने ये भी कहा कि उन्होंने उन्हें उत्तर दिया कि इस मंदिर को ढा दो और मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। ये वो मंदिर के बारे में नहीं बट अपने शरीर के बारे में वो बोल रहे थे। And that's exactly what Jesus has spoken and preached before, and they're taking it and twisting it and falsely accusing him of that. और यही यीशु ने पहले बोला था, उन्होंने अपने देह के बारे में बोला था, लेकिन यहाँ पे लोगों ने उसी को लेके तोड़ मरोड़ के यहाँ पे पेशकश की। He didn't say, I will destroy the temple. He said, you destroy this temple and I will build it again. That's exactly what he said. उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं मंदिर को ढा दूंगा, लेकिन उन्होंने ये कहा, यीशु ने ये कहा कि तुम लोग मेरे देह को, मेरे शरीर को तोड़ देंगे और मैं वापस से जी उठूंगा। He was talking about his own body. उन्होंने अपने खुद के शरीर के बारे में बोला। He didn't say, I will build another temple out of stones. उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि मैं एक मंदिर एक पत्थर से बनाने वाला हूँ। You get what I'm saying? आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? So they were basically falsely using Jesus' words
and twisting it. और वो लोग यीशु के ही शब्दों को तोड़ मरोड़ कर बोल रहे थे। Verses 60 and 61. 60 और 61। तब महायाजक ने बीच में खड़े होकर यीशु से पूछा कि तू कोई उत्तर नहीं देता, ये लोग तेरे विरोध में क्या गवाही देते हैं? परंतु वह मौन साधे रहा और कुछ उत्तर न दिया। महायाजक ने उससे फिर पूछा, क्या तू उस परम धन्य का पुत्र मसीहा है? यीशु ने कहा, हाँ मैं हूँ, और तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे। You see here, Jesus didn't answer when Caiaphas asked him the first time. और अगर आप देखेंगे यहाँ पे यीशु ने जवाब दिया जब काइफा ने उसे सवाल पूछा। Jesus did not first. सबसे पहले उन्होंने जवाब नहीं दिया, Because they were actually making a false testimony, and Caiaphas is asking Jesus, don't you answer? क्योंकि ये लोगों ने झूठी गवाही दी थी यीशु मसीह के खिलाफ, और तब काइफा ने पूछा कि क्या तुम्हें जवाब नहीं देना है? So Jesus did not answer. तो यीशु ने जवाब नहीं दिया, And Caiaphas was probably frustrated. और काइफा शायद यहाँ पे बहुत ही अच्छे, और शायद काइफस को यहाँ पर गुस्सा आया। 2 reasons. 2 कारण हो सकता है। First is he asked, is this true? And Jesus did not answer. सबसे पहला उन्होंने पूछा क्या यह सच है, और उन्होंने अपना मुंह को नहीं खोला। He did not open his mouth to defend himself. यीशु ने अपने मुंह को नहीं खोला। The second is he asks, are you the son of God? दूसरा सवाल उन्होंने पूछा कि क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? The blessed one, meaning God himself. परम प्रधान का पुत्र है। Are you the son of God? क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? Are you the Messiah, the son of the blessed one? क्या तू वो मसीहा है, परम धन्य का पुत्र? The word blessed one here that they are asking is referring to God, the Father, God himself. और परम धन्य, धन्य का मतलब ये है कि परमेश्वर खुद। And Jesus said, yes. और यीशु ने कहा हाँ, And he also said, I am. और उसने कहा मैं हूँ। Jesus spoke straight to the face of Caiaphas and said, yes, I am. और यीशु ने तब साफ साफ उसके मुंह के सामने कह दिया कि हाँ मैं हूँ। I mean, when Jesus said, I am, he basically is also using the same statement that God used for himself even before Moses. और जब यीशु ने कहा मैं हूँ, यही शब्द परमेश्वर ने कहा मैं हूँ जब मूसा के समय। Verse 62. वचन 62। यीशु ने कहा हाँ मैं हूँ, और तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे। So now Jesus not only is saying, I am the Son of God, he actually refers himself as divine. और यहाँ पे यीशु सिर्फ यही नहीं कहते कि हाँ मैं हूँ ये परमेश्वर का पुत्र, लेकिन यहाँ पे वो बता रहे हैं कि वो ही स्वर्ग से आए परमेश्वर है। Now we see Jesus clearly defining, saying that he himself is a heavenly being. और वो खुद यहाँ पे कह रहे हैं कि वो खुद परमेश्वर है, स्वर्ग से आए हैं। Like I come from heaven and I'm going back to heaven. वो बोल रहे हैं कि मैं स्वर्ग से आया हूँ और मैं स्वर्ग में वापस जाऊंगा। Yes, I am the one who is about to come from above, he says. हाँ मैं वही हूँ जो स्वर्ग से आने वाला था। You can do whatever you want now because it's allowed to you, but I'm going to come back and judge you with power, says Jesus. तुम्हें जो चाहिए तुम अभी वो कर सकते हो, लेकिन जब मैं वापस स्वर्ग से जाके वापस आऊंगा तो मैं तुम्हारा न्याय करने वाला हूँ। See, there have been many generations that have seen men who would rise up and say, I am the Messiah. बहुत सी पीढ़ी है ऐसे लोगों ने कहा है कि मैं मसीहा हूँ, But none of them were put to death. लेकिन किसी की भी मृत्यु दंड नहीं हुई है। They were not brought to investigation in the court. Maybe they were, but they were never punished with capital punishment of death. शायद उन्हें कोर्ट में लाया होगा, लेकिन उनको कभी भी मृत्यु दंड नहीं मिली। So proclaiming to be the Messiah does not bring you to capital punishment. जब तुम घोषणा करते हो कि तुम मसीहा हो तो तुम्हें मृत्यु दंड नहीं मिली है। But here, these guys are sentencing Jesus to be put to death. लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने यीशु मसीह को मृत्यु दंड दिया। We also know from the beginning they were intending to kill him. हम ये जानते हैं कि बहुत शुरुआत से वो यीशु को मारना चाहते थे, Because their idea was just to capture him and kill him. क्योंकि उनका सोच सिर्फ यही था कि बस उन्हें पकड़वाना है और उन्हें मार डालना है। How bad is this? ये कितना बुरा है। Verse 63 and 64.
63 और 64। तब महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़ कर कहा, अब हमें गवाहों का और प्रयोजन है। क्या प्रयोजन है? तुमने यह निंदा सुनी, तुम्हारी क्या राय है? उन सब ने कहा, वह वध के योग्य है। He basically got so upset, Caiaphas, he tore his clothes with anger and frustration. और काइफा को इतना गुस्सा आया कि उसने अपने कपड़े को फाड़ दिया। And he says, Jesus blasphemed. You heard the blasphemy? That's what he said. और उसने कहा कि यीशु, तूने तो निंदा की है। तुमने सुना उन्होंने क्या निंदा की? Okay, blasphemy means cursing God's name directly. और निंदा करना इसका मतलब ये है कि परमेश्वर का नाम को निंदा करना। Jesus didn't. लेकिन यीशु ने नहीं किया। Yet this Caiaphas condemned Jesus to deserve death. लेकिन फिर भी काइफा ने यीशु को मृत्यु दंड दिया। And he used blasphemy as an opportunity to punish Jesus with capital punishment. क्योंकि काइफा ने कहा कि यीशु ने परमेश्वर का निंदा किया है, इसलिए उसे मृत्यु दंड मिलनी चाहिए। Jesus did not blaspheme, लेकिन यीशु ने निंदा नहीं की। but Caiaphas called Jesus as a blasphemer. लेकिन काइफा ने यीशु को कहा कि वो निंदा करने वाला। They falsely accused him and condemned him. उन्होंने उनके ऊपर झूठा आरोप लगा के उन्हें मृत्यु दंड दी। Verse 65. वचन 65। तब कोई तो उस पर थूकने और कोई उसका मुंह ढांपने और उसे घूंसे मारने और उसे कहने लगे कि भविष्यवाणी कर, और प्यादों ने उसे लेकर थप्पड़ मारे। Imagine his face was covered. They blindfolded him and started punching on his face and beating him and spit on his face. अभी आप सोचिए कि ये सब लोगों ने आके उनको उनके ऊपर उनके आंखों को ढक कर उसे बूसे मारने लगे। If you watch a kabaddi match, अगर आप कबड्डी का मैच देखोगे, when a player is prepared and he is able to see when the other team is coming to capture him, he will be able to prepare himself and be ready for the impact, and he is not injured when they capture him. और कबड्डी में ऐसा होता है कि जब खेल खेला जाता है तो वो सब कुछ देख सकता है कि आगे क्या हो रहा है, और ताकि वो अपने आप की रक्षा करने के लिए वो अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा। In seconds they can prepare that, oh, they're going to capture me, and they will be ready to fall so they're not injured. तो उसको समझ में आता है कि हाँ, अभी ये मुझे पकड़ने वाले हैं, तो मुझे अभी पकड़वाना नहीं है, मुझे किसी ना किसी तरीके से यहाँ से भाग निकलना है। But when they capture him, still because he was prepared, he's not injured. उसे पकड़वाया इसलिए नहीं गया क्योंकि वो तैयार था और इसके वजह से उसे चोट नहीं पहुंची। But if he's blindsided, he didn't know who's coming behind him. When they capture him, that person hits down, falls down, and they are injured. लेकिन अगर कोई किसी के आंखों में पट्टी बांध दे तो वो कबड्डी नहीं खेल सकता, क्योंकि उसे पकड़वाया जा सकता है, उसे मारा जा सकता है, वो नीचे गिर सकता है। So in order to hurt Jesus really bad, they covered his eyes and they spit on him and hit him. और उसी तरह यीशु को ज़्यादा दुख देने के लिए, दर्द देने के लिए उनके आंखों में पट्टी बांधी गई और उनको मारा गया, उनके ऊपर वार किया गया। Jesus could not see where the blow was coming from, so they hit him crazy. और यीशु को मालूम नहीं था कि ये मार कहाँ से आ रहा है, और सब लोग उन्हें मार रहे थे। When someone spit on your face, what would you do? जब कोई आपके मुंह पे थूकता है तो आप क्या करते हो? If it is me, I would try to cover my face. अगर मैं होता तो शायद मैं अपने मुंह को छुपा लेता, But Jesus didn't. लेकिन यीशु ने ऐसा नहीं किया। You know why? पता है क्यों? He carried your shame and my shame. क्योंकि उन्होंने आपका अपमान और मेरे अपमान को लिया। Isaiah chapter 50 verse 5. यशाया का 5वां अध्याय का 5वां वचन, We can read verse 5 and 6. और उसमें हम 5 और 6 पढ़ेंगे। प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है और मैंने विरोध ना किया, ना पीछे हटा। मैंने मारने वालों को अपनी पीठ और गलमोच नोचने वालों की ओर अपने गाल किए, अपमानित होने और उसके थूकने में से मुंह न छिपाया। So Jesus fulfilled what was spoken by Isaiah years ago. और यीशु ने वो सारे भविष्यवाणी को पूरा किया जो यशाया में यहाँ पे बताया गया है। He is the lamb that was slain.
और वो मेमना है जिनका बलिदान दिया गया था। He is the Messiah who was to come. और वही वो मसीहा है जो आने वाले थे। He is the one who was prophesied that would come from heaven. और उनके बारे में ही भविष्यवाणी की गई थी कि वो स्वर्ग से आएंगे। And he was bruised for our iniquities. लेकिन उन्हें मारा गया था हमारे पापों के लिए। He carried my shame and your shame on himself. उन्होंने आपका अपमान और मेरे अपमान को उन्होंने बर्दाश्त किया। Everybody started hitting Jesus. और सब लोगों ने यीशु को वो मारने लगे। That trial was rigged. और जो पेशकश की गई थी वो कपट था। They did this to Jesus Christ. और उन्होंने ये यीशु को किया। And Jesus took it. और यीशु ने ये लिया। Why? क्यों? So that you and I can claim by his stripes we are healed. क्योंकि आप और हम घोषणा कर सकते हैं कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। Brother, sister, भाइयों बहनों, Jesus suffered for you and me. यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए वो क्रूस पर चढ़े। He loves you. वो आपसे प्रेम करते हैं। If you still don't know that, and today is the day for you to know that. अगर आप अभी भी ये नहीं जानते तो आज का दिन है कि आप उन्हें जान लें। Jesus is holy. यीशु पवित्र है And he was willing to suffer for you and me. और वो आपके लिए और मेरे लिए कष्ट उठाए। He was willing to take away the punishment away from us. और वो आपका और हमारा पापों को दूर करना चाहते थे। He was willing to save you from hell. और वो आपको और मुझे नरक से बचाना चाहते थे। We wouldn't be able to offer remission for our own sins, brother, sister. हम अपने पापों से छुटकारा नहीं पा सकते। We needed somebody to deliver us from this wretched punishment of our own sins. हमें कोई चाहिए था जो हमारे पापों से हमें मुक्त कर सके। No one can do that. और वो कोई नहीं कर सकता। So the Lord himself took our place and suffered for us. और परमेश्वर ने इसलिए हमारा जगह लिया और वो हमारे लिए वो कष्ट से गए So we could be spared. ताकि हमें बचाया जा सके। This is love, brothers, sisters. और यही प्रेम है भाइयों बहनों। And this is the gospel. और यही सुख समाचार है। And if you don't know this till today, अगर आप ये नहीं जानते be sure this day that Jesus died on the cross for your sins also. तो ये आप जान लीजिए कि यीशु मसीह आपके पाप के लिए भी क्रूस पर चढ़े हैं। He suffered shame in our place. और वो अपमान से गए जो अपमान से हमें जाना चाहिए था। So that you and I can stand before God the Father justified. ताकि आप और हम परमेश्वर पिता के सामने खड़े हो सके। There is no other love like this. और ऐसा कोई प्रेम नहीं है। We were the ones who blasphemed. हम ही वो लोग हैं जिसने परमेश्वर की निंदा की। Yet he paid the price. लेकिन फिर भी उन्होंने चुकाया। Let's pray. हम प्रार्थना करेंगे। Love you, Lord. We just want to thank you for your sacrifice and your willingness to take our punishment away. Lord, I come before you this moment and ask you for your favor upon all of us who are looking at you at this moment. Give us your understanding. Bless us. Be with us. In your name we pray, Jesus. Amen. आमेन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Thank you for joining us. धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और वचन के अंदर आप और भी बढ़ रहे होंगे और उसे सीखने की इच्छा भी रख रहे होंगे। लेकिन मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ, अगर आप इस वचन को और भी गहराई से समझना चाहते हैं और खुद पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूँ कि हमारा एक ऑनलाइन सेमिनार होने वाला है। और अगर आप पास्टर जोस के सिखाने के तरीके से आकर्षित हुए हैं तो मैं आपको न्योता देता हूं कि आप दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए। हम आपको एक लिंक देंगे, आप उस फॉर्म को फिल कीजिए और जैसे भी डेट होगा सेमिनार का आपको बता दिया जाएगा। तो आप और भी गहराई से वचन को सीख पाएंगे और अपने आप वचन का अध्ययन कर पाएंगे। सुनने में कितना आकर्षित लग रहा है, सही है कि नहीं? तो आप बिल्कुल वेट मत कीजिए, कॉल कीजिए, हमें व्हाट्सएप कीजिए और जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कीजिए। आते हैं और परमेश्वर आपको जो सिखाना चाहता है उसके लिए देरी मत कीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। आज मैं आशा करता हूं कि आप इस सेवकाई के द्वारा आशीषित हुए होंगे। अगर आप हमारी सेवकाई में किसी भी तरीके से मदद करना चाहते हैं तो इस दिए गए डिटेल पर आप अपनी मदद हमें भेज सकते हैं। शुक्रिया।